تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے. میں آصف مہدی اپنے کیمرہ مین سید علی حسن کے ہمراہ آج سرزمین کلکتہ کے ایسے خطے میں آیا ہوں جو اپنی تہذیب اور اپنے ادب کے لیے بہت مشہور و معروف ہے، جسے ہم لوگ ثانیہ لکھنؤ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور جہاں کی عزاداری ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے. آج بروز 4 ربیع الاول یہاں پہ جلوس اصغریہ منعقد ہوگی، جو ایک بہت مشہور و معروف جلوس ہے پورے ہندوستان میں، جس کا نام ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اسی کو کور کرنے آئے ہیں اور ایک کے بعد دیگر مناظر آپ کو دکھاتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کے روبرو آتے رہیں گے. والسلام. یہاں پہ پورا ایک مومنین کا ہجوم ہے اور یہاں پہ خادمین بھی ہے جو مومنین کی ہر طرح سے خدمت میں لگے ہوئے. آئیے ہم آپ کو مناظر دکھاتے ہیں. انشاءاللہ دل سوز مناظر دیکھنے کو ملیں گے آپ کو. تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں. ناظرین آئیے میں آپ کی ملاقات ایک مشہور و معروف ہندوستان کے نوحہ خان جناب شجاعت حسین صاحب سے کراؤں، جو خصوصاً اس جلوس میں شریک ہونے کے لیے بنگلور سے سفر کر کے آئے ہیں. آئیے میں ان سے کچھ تاثرات لیتا ہوں اس جلوس کے بارے میں. السلام علیکم. اپنے کچھ تاثرات بیان کریے اس جلوس اصغریہ اور مٹیوچ کی عزاداری کے بارے میں. سب سے پہلے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جلوس اصغریہ یہ بنگال کا ایک بہت ہی قدیم اور بہت ہی اس طریقے کا پروگرام ہے کہ جس میں انسان شریک نہ ہو تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہو. اور بس اس پروگرام کی رونق جو ہے مولا علی اظہر کے جلوس سے ہے، اور خاص کر ہمارے قوم کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس جلوس کی رونق اور زینت بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان سے مطلب بنگال کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے دوسرے لوگ بھی اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اور خصوصاً میں بنگلور سے اس وقت اس پروگرام میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں. مولا آپ کی زیارت قبول کرے، آپ کو سلامت رکھیں. بہت شکریہ ہمارے چینل کو ٹائم دینے کے لیے. اس محبت اور جذبے کو دیکھ کے بس 2 ہی مصرعے ذہن میں آتے ہیں کہ عشق غم حسین کا اعجاز دیکھیے، ایک بے وطن نے سب کو وطن میں آئیے ناظرین ہم آپ کی ملاقات کچھ مومنین سے کرائیں، ان سے بات کرتے ہیں، یہاں کی عزاداری اور یہاں کے ادب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. آپ کا نام؟ عباس تقدیری. مٹیوچ کی عزاداری کے بارے میں تاثرات بیان کرے کہ اس جلوس کے بارے میں ایسا کیا خاص ہے اور یہاں کی عزاداری کے بارے میں کیا خاص ہے. ہم نے سنا ہے کہ اس سرزمین کو ثانیہ لکھنؤ بھی کہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس سرزمین کو ثانیہ لکھنؤ کہتے ہیں؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اس سوال کے مکمل جواب کے لیے ایک تفصیلی وقت چاہیے، جو بہرحال نہیں ہے، نہ تو ہمارے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. لیکن آپ نے یہاں اس سرزمین کی کو ثانیہ لکھنؤ جو کہتے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا. علماء ادب اور علماء زبان نے اس کو ثانیہ لکھنؤ کہا ہے. کیوں کہ جب واجد علی شاہ کو انگریز معزول کر کے لائے تو سرزمین لکھنؤ سے مٹیابوج کی سرزمین پہ لائے. اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ واجد علی شاہ جو اختر تخلص رکھتے تھے وہ کوئی عام قیدی نہیں تھے، بلکہ ایک سیاستی قیدی تھے، لہذا ان کو باعزت و احترام یہاں پہ لایا گیا. اور جب وہ حضرت واجد علی شاہ اختر یہاں پہ آئے تو لکھنؤ سے اپنے ساتھ پورے قافلے کو لائے، جس میں اہل زبان بھی تھے اور مذہبیات کے جاننے والے بھی تھے. مرثیہ خان بھی تھے، مرثیہ گو بھی تھے، شعراء بھی تھے، ادبا بھی تھے، خطبہ بھی تھے، علماء بھی تھے. اور اس سرزمین کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ مرزا دبیر کا بھی آنا ثابت ہے، اور علامہ
जो गुफरा माब के बाद जिनका फ़ौरन नाम लिया जाता है मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब, उनका भी आना साबित है। तो ये तो हुई इस सरजमीन की बात। उसके बाद आज तक यहाँ पे शोरा उदबा खुतबा का सिलसिला बहरहाल जारी है। बगल में एक कब्र है मौलाना मुफ्ती अल्ताफ़ हुसैन अल-हरी साहब की, बहुत बड़े आलिम दीन थे और यहाँ पे आज भी उलमा लातादाद शुमार में पाए जाते हैं। शोरा भी माशाल्लाह खूब हैं। अब तफसीली गुफ्तगू करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए है, लेकिन आज भी यहाँ पे बड़े बड़े शोरा हैं। अब आपके दूसरे हिस्से, सवाल के दूसरे हिस्से पर मैं आता हूँ, जुलूस असगरिया। जुलूस असगरिया की सही तारीख तो आपको यहाँ के जो मुकामी लोग हैं या जो बुज़ुर्ग हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन जो जुलूस असगरिया है ये हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में है। करबला में उनकी शहादत तो हुई थी 10 मुहर्रम को, लेकिन जुलूस असगरिया मासूम अली असगर के नाम की यह तासीर है कि आज लगता है कि जनाब अली असगर की शहादत हुई, जबकि आज शहादत है ही नहीं। लेकिन मटिया बुर्ज के हर घर में जो भी मजलिसें होती हैं जनाब अली असगर के मसाइब पढ़े जाते हैं, उन्हीं के हाल का नभा पड़ा जाता है। इस जुलूस के लिए मैं बस सिर्फ इतना मैं कहूँगा, अल्लाह अकबर, किस नीयत से बानियों ने इसकी बुनियाद रखी थी कि हिंदुस्तान में जो बड़े जुलूस अज़ा हैं, चाहे वो लखनऊ का 21 रमज़ान का जुलूस हो, हैदराबाद दक्कन का आशूरे का जुलूस हो, फैज़ाबाद की 8 रबीउल आठवीं जिसको आप कहते हैं, और जौनपुर का 8 मुहर्रम, अगर तमाम बड़े जुलूसों का आप इक्जा करेंगे तो बहरहाल इस जुलूस का नाम उसमें शामिल होना ही होना है। अगर जो उसमें शामिल नहीं करेगा वो दयानतदार मौरिख नहीं कहलाएगा। इस जुलूस की ये खासियत है। और एक चीज़ जो इस जुलूस में आपने मुझसे पूछा क्या ख़ास बात लगती है, जो ख़ास बात है वो ये है, तो शायद ये जहाँ तक मेरी जानकारी है हिंदुस्तान के किसी भी जुलूस में नहीं है। इंशाल्लाह जब जुलूस ज़्यादा बरामद होंगे तो जो वाज़ गरा पढ़ते हुए मासूम बच्चे हज़ारों की तादाद में होते हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से ये मंजर शायद हिंदुस्तान के किसी और जुलूस अज़ा में नहीं है। इनसे यहाँ की जुलूस की खासियत है। माशाल्लाह आपने बहुत मानी खेज जवाब दिए। मैं सादात मीडिया की जानिब से आपका शुक्रिया करता हूँ। नाज़रीन आइए हम फिर और लोगों से बात करेंगे और मनाजिर भी दिखाते रहेंगे आपको इसी तरह से। इमाम बारगाह फिरदौस महल साहिबा में, जिसको नवाब शम्स जहाँ बेगम ने तामीर किया था, करीबन 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इस अज़ा खाने को। और इस अज़ा खाने के लिए मशहूर बात यह है कि ये अज़ा खाना 2 महीने 8 दिन किसी भी वक्त मजलिसों से खाली नहीं रहता है। यहाँ मजलिसों का एक सिलसिला रहता है, कभी मर्द की मजलिस है, कभी औरतों की मजलिस है, एक सिलसिला रहता है। यह है कि ये अज़ा खाना 2 महीने 8 दिन में कभी भी आपको खाली नहीं मिलेगा और बहुत शानदार अज़ा खाना है। सरज़मीन मटिया बुर्ज का के लिए ये शान है। और आइए और दीगर मनाजिर हम आपको दिखाते रहेंगे। आइए नाज़रीन हम आपकी फिर मुलाकात इस जुलूस के बानियान से कराएं और इस जुलूस के तारीख़ और इसके इर्तिक़ा के बारे में कुछ जानें। आइए, आपका नाम? मेरा नाम मिर्ज़ा आदिल हुसैन। ये जुलूस असगरिया के जो बानी हैं वो हमारे दादा बुजुर्गवार थे, मौलाना मिर्ज़ा अल्ताफ़ हुसैन। 1915 में इसका वो हुआ था, बुनियाद रखी गई थी जुलूस की। और माशाल्लाह तब से लेकर के आज तक मेरे दादा के बाद मेरे वालिद, मेरे चचा, आज हम लोग तमाम मेंबरान, तमाम हमारे सेक्रेटरी, तमाम कार जो अंजुमन के हैं, सब के खुलूसियत और मोहब्बत से हम लोग बहुत ही तरीक़े से और ख़ूबसूरती से जुलूस को उठा रहे हैं और बहुत शानदार से उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह जब तक ताहयात है हम लोग इसी खुलूस से और अच्छे से इस जुलूस का की जो बका है उसको बरकरार रखने की कोशिश करते रहे हैं। जैसा आपने कहा कि इस जुलूस की क्या ख़ास बात है, ये पूरे मगरबी बंगाल में क्या, ये पूरे हिंदुस्तान में ये वाहिद ऐसा एक जुलूस है जिसमें सबसे आगे बच्चे होते हैं। और बच्चे कोई 2-4 नहीं होते, कम से कम 1000 बच्चे होते हैं और सबके हाथ में अलम होता है। ये मटिया कल के बड़े पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ये कहीं नहीं होता मंजरकशी। और दूसरी ये है कि ये क्योंकि मटिया बुर्ज के लिए शान इसलिए है कि ये जुलूस जो है अंजुमन असगरिया उठाती ज़रूर है, लेकिन ये अंजुमन असगरिया ही इसकी वो नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। तमाम मटिया बुर्ज इसको अपने सर पे ले लेते हैं और हर आदमी ये कोशिश करता है कि इस जुलूस को हम करें और इस जुलूस में मेरी तरफ से कुछ ताउन रहे। ये और किसी भी जुलूस में नहीं देखा जाता है पूरे मगरबी बंगाल में। हर अंजुमन का जिसका जो प्रोग्राम रहता है वो लोग करते हैं, लेकिन अंजुमन असगरिया का जो जुलूस असगरिया है, इसमें आप मटिया बुर्ज के किसी भी घर में चले आइए, वहाँ कुछ ना कुछ अपना एक फंक्शन भी होता रहता है
मातम, अज़ादारी, तबरुकात या उनके मेहमान जो आ रहे हैं उनके लिए खाना बनाना, ये करना, एहतमाम करना। और जुलूस असगरिया की एक और बड़ी बात यह है कि जुलूस अंजुमन असगरिया में मटिया बुर्ज की जितनी भी अंजुमन है सबके मेम्बरान इसमें हैं। तो ये पूरे मटिया बुर्ज की अंजुमन है और पूरे मटिया बुर्ज के अवाम के लिए ही और अवाम से ही है। इसकी ये जैसा कि हमने देखा कि इस वबा के दौर में पूरे हिंदुस्तान में अज़ादारी पे पाबंदियाँ थी, लेकिन हम जैसा मुशाहिदा कर रहे हैं कि यहाँ पे मोमिनीन भी है, अज़ादार भी है और जुलूस भी अपनी शान व शौकत से निकलने वाला है। तो इस बारे में क्या एडमिनिस्ट्रेशन का क्या वो है, आप उसके बारे में ज़रा बताएं हम। एडमिनिस्ट्रेशन के हम बहुत शुक्रगुजार हैं और ख़ास तौर से हमारे जो गार्डनिश के ओसी साहब हैं उनके शुक्रगुजार हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल जुडिशरी ने हम लोगों का बहुत साथ दिया, हर तरह से कोऑपरेट किया और उनके ही जहाँ तक जिस गाइडलाइंस पे हम लोगों ने अपने सारे काम किए। हाँ, एक बात और बहुत अच्छी बात यह है कि जो हमें गाइडलाइंस मिला हमने उसको फॉलो किया, जिनके लिए जो गाइडलाइंस थी हमने उसको फॉलो किया। इस बिना पे हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारे जो वो ये है कि ये लोग हर चीज़ को अपने पूरी तरह मेंटेन करते हैं और जो इनको गाइडलाइंस दिया जाता है वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। उसी बिना पे हमको अंजुमन असगरिया का भी जुलूस का निकाला गया है, परमिशन मिला है और परमिशन ये मिला है कि हमको 100 आदमी के अंदर में जुलूस लेके बरामद होना है। हमने आवाम के सामने ये बात रखी है, आवाम ने भी इसको कबूला है और इंशाल्लाह जो गाइडलाइंस मिले उसी गाइडलाइंस पे हम लोग निकलेंगे भी। और एक बार फिर से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को हम पे नाज करने का मौका अता करेंगे। जैसा कि हमने लोगों से सुना है कि जुलूस असगरिया मटिया बुर्ज की शान मानी जाती है और बंगाल की शान मानी जाती है और हिंदुस्तान के बड़े जुलूसों में इसका शुमार है। इसके इर्तिक़ा के बारे में हमें कुछ बताइए कि उस दौर जिस दौर में इसकी बुनियाद रखी गई थी और इस दौर में क्या फ़र्क आया है जुलूस में, आपने क्या तब्दीलियाँ महसूस की हैं? देखिए, जहाँ तक फ़र्क का सवाल है तो कल और आज में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन मटिया बुर्ज कलकत्ता सबके ताउन से, खुलूस से, मोहब्बत से आज इस शान तरीके से जुलूस बरामद हो रहा है कि जिसका शुमार सारे हिंदुस्तान में किया जाता है। और बनारस वगैरह से भी बराबर अंजुमन आती थी। इस साल चूँकि लॉकडाउन का ज़माना है, बाहर के तो कोई अंजुमन या ज़्यादा मोमिनीन नहीं आ सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आबादी का तनासुब देख के ये अंदाज़ा हो रहा है कि मोमिनीन उसी तरह से, उसी खुलूस और लगन मोहब्बत से जुलूस ताबूत असगरिया के लिए तशरीफ़ लाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरज़मीन मटिया बुर्ज की जो है मशहूर चाय, जिसे कश्मीरी चाय कहते हैं, उसका भी मोमिनीन के लिए एहतमाम है। मोमिनीन राह से गुजर रहे हैं, इसको नोश फरमाते हुए जा रहे हैं। नाजरीन, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ कदम दर कदम सबील का एहतमाम है, तबरुक का एहतमाम है। लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अज़ादारों को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। असगर बेशीर के याद में सबील का एहतमाम है और इसी तरह और भी दीगर तबरुक का एहतमाम है। आइए हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही मनाज़िर। इसके वसीले से खुदा सुनता रहा सबकी दुआ, दुनिया के हर नुक्स को लिखना पड़ा, कहना पड़ा। रोज़े आशूरा से अब तक खा रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत ही दिलसोज मंजर देख के इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। देखिए किस तरह से बच्चा जो है आते जाते मोमिनीन की खिदमत कर रहा है, किस तरह से असगर बेशीर के नाम पे ये बच्चा जो है लोगों को सबील पिला रहा है। और ये जज्बा जो है देखकर जो है नजफ से करबला का वॉक याद आता है कि जिस तरह बच्चे वहाँ पर खिदमत करते हैं ज़ायरीन की, उस तरह से यहाँ के बच्चे भी जो हैं ज़ायरीन की खिदमत में लगे हैं। अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मोमिनीन तबरुक नोश फरमा रहे हैं। मुसलसल सुबह 11 बजे से यहाँ तबरुक का सिलसिला जारी और सारी है। तकरीबन पूरे मगरबी बंगाल के लोग जो है शरीक होते हैं और तबरुक का एहतमाम रहता है तमाम लोगों के लिए और यहाँ तबरुक नोश फरमा कर जुलूस में शरीक होते हैं। ये रिस्क जो खाते हैं हम कैसे मिला, क्यों कर मिला, सुनकर ज़मीन इस बात को कहने लगी ये बरमला। नाज़रीन, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मोमिनीन जो है
جھوٹے برتن دھو رہے ہیں. تب رک کے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کچھ. السلام علیکم. First, give us your brief introduction to our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Shiraz Hussain. I'm a very simple person and I'm a world record holder. First of all, I want to say that I engraved complete Holy Quran on aluminium sheets, first time in the whole world, using the electronic pen. In 2003, I began my work and completed in 2004 and got a world record. I'm Indian, first of all, and then I'm a Shia Muslim. So I engraved Ramayana also on aluminium sheets, as I engraved Holy Quran on aluminium sheets using the electronic pen. As you said, you are a Quranic scholar and a world record holder as well. MashaAllah, may Allah reward you for this. But I saw you were washing dishes some time before. So what made you do this? Only the love of Imam Hussain alayhi salam. And every person who is staying in this world, who is very dominant or whatever, but after all, everyone knows that I have to die and I have to go to meet my Almighty, our Creator. So while thinking that, I was just washing my plates in which Mu'mineen and the people used to have meal. So I'm just feeling proud to wash those dishes because I know that I'm a very simple person. I'm nothing in the world. And when I do this thing, I think that I'm also like a king. Because this thing, the people see and tell me, so many people told me that Maulana, what you are doing? Or Shiraz Bhai, what you are doing? You are a world record holder and you are just washing the dishes. I said, no problem. It's my duty and I'm very happy and I feel proud to do this because this program is related to Imam Hussain and his son Ali Asghar Masoom. Not only Muslims, but our Hindu people, our Hindu brothers and sisters who don't have their santan, who don't have their awlad, their children, after getting married of 15 years, 20 years, 10 years, they used to come in this procession and one cradle, jhula of Ali Asghar Masoom, they just stand by that, near that, and they pray to Allah, Ali Asghar Masoom ke satte mein, because of Ali Asghar Masoom, eh Malik, give me, or eh Ishwar, give me awlad, give me the child, and they get the child within 1 year. So we respect all these things, and this is related to our astha, our aqidah, faith. That's why I just do this thing. MashaAllah. Since we have arrived here, we have been listening from so many people that even those people who migrated towards other cities for their livelihoods and even those who went abroad, they try their best to come and attend this Julus in Matia Bruj. What is so special about this Julus? That there's so many people who used to stay here by birth and have already migrated from this Kolkata, Matia Bruj to another cities, states or country. So many people after independence, they have already migrated from India to Pakistan. But when they listen that today Asghariya Julus is there, they try their level best to come here to join Asghariya Julus. Thank you for your time. नाजरीन, अब हम आ पहुँचे हैं इमाम बारगाह कसरुल बुका में, जो इस सरज़मीन की गालिबन सबसे पुराना, जो इस सरज़मीन का सबसे पुराना अज़ा खाना है. हम वहाँ पहुँचे हैं और देखेंगे कि यहाँ के लोगों ने किस तरह से जो है ज़ायरीन के लिए एहतमाम किया है. देखते हैं, आइए हमारे साथ नाज़िर दिखाते नाज़रीन. बारगाह कसरुल बुका जो शहर कलकत्ता में सरज़मीन मटिया ब्रुज के सबसे कदीमी इमाम बारगाह है. यहाँ के ज़री खाने में एक अलग ही रौनक है. हम आपकी ज़ियारत करवाते रहेंगे इंशाअल्लाह. हमारे साथ इसको भी मिली है नामो नसब की शान तो देखो, वो के है असगर फिर भी अली है, क्यों ना कहूँ बरमला.
ہتھیلی ہے اصغر کی اور کشادہ عرش بری سے، کیا ہے فضائل اس چوکھٹ کے، پوچھو ذرا جبریل امی سے، سارے فرشتوں اور نبیوں نے مانگا خدا سے پایا یہیں سے، جب یہ وظیفہ پڑھا ان کی عطا ہی رب کی عطا ہے، ان کے ارادے رب کے ارادے، ان کی سخاوت پر صدقے ہیں، خلد بری کے دو شہزادے، ہاں یہ وہی دہلیز ہے لوگوں، وہ جو بشر کو رب سے ملا دے، یوں ہی نہیں بن گیا ناظرین آئیے ہم یہاں کے ایک منتظمین میں سے ایک سے بات کریں گے کہ انہیں یہ جذبہ کہاں سے ملتا، مسلسل جو یہ خدمت میں لگے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ عباس حسین۔ عباس حسین صاحب، یہ کب سے آپ لوگ یہاں پہ جو ہے مومنین کی خدمت میں لگے ہیں؟ یہ تو کل رات سے کام ہو رہا ہے۔ اور اپنے کچھ تاثرات بیان کریں کہ لوگ کس طرح سے خدمت میں لگے، یہ جذبہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ جذبہ کربلا سے ملتا ہے، سفر عشق سے، یہ وہاں سے یہ جذبہ ملا ہے۔ یہاں بھی زائرین جو ہے ہر سال کی طرح لگے رہتے ہیں خدمت کے لیے، اور جوتا پالش بھی ہو رہا ہے، سبھی لڑکے نوجوان سب لگے ہوئے ہیں۔ اور اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ مومنین جو ہے کم آئے ہیں، کیونکہ لوکل ٹرین بند ہے جس کی وجہ سے آدمی کم آئے ہیں، پھر بھی ماشاءاللہ سے لوگ آئے ہیں، آ ہی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو ہے سب کام ہو رہا ہے اپنا۔ مولا آپ لوگ کو سلامت رکھے، اس محنت کو قبول کرے۔ مومنین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے شریک نہیں ہو پائے، لیکن پھر بھی جناب زہرا کا کرم ہے کہ یہاں کے لوگ اہل مٹیوت جو ہے عزاداری کر پا رہے ہیں۔ حالانکہ تمام ہندوستان میں عزاداری پہ پابندی ہے، لیکن جناب زہرا نے انہیں منتخب کیا ہے کہ اس دور میں بھی، وبا کے دور میں بھی عزاداری کھل کے کر پا رہے ہیں، مومنین کی خدمت میں بھی لگے ہیں۔ مصرے ذہن میں آتے ہیں کہ دلہن کی طرح راہ سجاتے ہیں عاشقین، خیمے محبتوں کے لگاتے ہیں عاشقین، جو رزق سال بھر میں کماتے ہیں عاشقین، دولت وہ زائروں پہ لٹاتے ہیں عاشقین، کہتے ہیں پھر بھی قلب ہمارے نہ بھر سکے، ہم زائر حسین کی خدمت نہ کر سکے۔ آئیے ناظرین، اور دلسوز منظر کے ساتھ آپ کے ساتھ روبرو ہوتے رہیں گے، سادات میڈیا کے ساتھ بنے رہیں۔